السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ نواز اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے انتخابی مہم کا صفدر آباد سے آغاز کر دیا ہے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انگریز چلے گئے، 75 برس بعد بھی ان کا دیا گیا نظام اور چوکیدار ملک پر مسلط ہے۔ بدامنی، مہنگائی، کرپشن اور بے روزگاری کا آپس میں مقابلہ ہے۔ 12 اگست کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی۔ امیدوار برائے قومی اسمبلی این 116 میاں اسد اللہ، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 143 حافظ ارشاد گجر، امیر بستی پنجاب جاوید قصوری، امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ رانا تحفہ دستگیر نے بھی خطاب کیا۔ ورکرز کنونشن میں سینکڑوں کارکنان، تاجروں، صحافیوں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی صفدر آباد آمد پر والین استقبال کیا گیا۔ اور آپ کو خبر دیں کہ منڈی بہاؤالدین میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے بعد گلیاں اور سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئیں۔ منڈی بہاؤالدین شہر اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے اور بارش کے باعث شہر کی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ نکاسی آب کا نظام بری طرح ناکام ہو گیا اور واسو روڈ، جیل روڈ، منشی محلہ چوک، منشی محلہ مین گلی، اسکول محلہ، کالج چوک، کشمیر کالونی کی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں اور تھانہ صدر کی عمارت میں پانی داخل ہو گیا۔ مقامی عوام کی بڑی تعداد گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ شکر گڑھ میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کسانوں کی دھان کی فصل مزید پانی میں ڈوب گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا اشتیاق۔ بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقے شکر گڑھ کے جو کہ زیر آب آ چکے ہیں، جن میں محلہ آبکاری، محلہ نورکر روڈ، شمار روڈ، افضل پورہ، انت والی، جو کہ تقریباً بارشوں سے گلی محلے ڈوب چکے ہیں۔ اور اس وقت میں مین نورکر روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر تقریباً 3 فٹ بارشوں کا پانی جمع ہے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے انتظامیہ کی، تو انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہاں پانی موجود ہے۔ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار انتظامیہ سے ریکویسٹ کی، درخواستیں دی ہیں، مگر انتظامیہ نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ لہذا ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس پر فوری نوٹس لے کر اس پر ایکشن لیا جائے، تاکہ یہ جو پانی جمع ہے محلوں گلیوں میں، لوگوں کے گھروں میں پانی جمع ہو چکا ہے، اس پر ایکشن لیا جائے اور کام کروایا جائے، تاکہ پانی لوگ اپنی زندگی سکھ سینس لے سکیں۔ اور دوسری بات، اگر بات کی جائے بارشوں کی وجہ سے موسم جو کہ خوشگوار ہو چکا ہے اور شہری بہت خوش ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پیر محل میں شدید گرمی اور حبس کے بعد موسم نے خوبصورت رنگ بدلا۔ باران رحمت سے ہر طرف موسم خوشگوار ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد موسم نے خوبصورت رنگ بدلا اور باران رحمت سے ہر طرف موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عارف والہ دریائے ستلج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تاحال 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہے، جس کے باعث سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار ہیں۔ مزید اسی پر جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی کمبو سے۔ ہاں جی بالکل، عارف والہ میں تباہی مچانے کے بعد دریائے ساتلج میں پانی کے بہاؤ میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ میں اس وقت بلاڑی قصوریہ کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر پانی کے لیول میں 2 فٹ سے زائد کمی واقع ہو چکی ہے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے سیلابی پانی کی تباہ کاریوں کی، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ بلاڑی قصوریہ، بستی راجن کا، کوٹ لنگا، بلاڑا حسن کا سمیت دیگر علاقوں میں تاحال 3 فٹ پانی کھڑا ہے۔ لوگوں کی مشکلات تاحال برقرار ہے۔ سیلاب متاثرین کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی قیمتی فصلیں تھیں، ذریعہ آمدن تھا، سیلابی پانی نے برباد کر دی ہیں۔ یہاں پر کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے اور مالی امداد کا اعلان کرے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلابی صورتحال ریسکیو 1122 نے 1700 سیلاب میں پھنسے افراد کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر آپ کا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भवाना में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मौजा साहिल के करीब ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ चुकी है। लोग नकल मकानी करने लगे हैं। मौजा साजिल अड्डा कप को मिलाने वाली राब्ता सड़क तबाह होने के करीब है और कुछ पुल के मेहमान सड़क तबाह होने से दर्जनों आबादियों और देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने का खदशा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही। हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया और रेस्क्यू की टीमें मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। झेलम शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाके पिंड दाद खान में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले बिपर गए। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह झेलम शहर और मज़ाफ़ाती इलाके गुज़िश्ता रात से जारी बारिश की वजह से हर तरफ जल थल कर दिया है। तेज़ बारिश के बायस बरसाती नाले बंद होने की वजह से पानी जो है वो सड़कों पर भर गया है। मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। महकमा मौसमियात की पेश की इतला के बावजूद बरसाती नालों की सफाई नहीं करवाई गई। निकासियाब के मौसर इंतजामात न होने के बायस बारिशी पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। जबकि दूसरी जानिब पिंड दाद खान ता अल्लाह मोटरवे ज़ेर तामीर रोड पर भी कीचड़ और बारिशी पानी के बायस मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पतोकी सराय मुगल हेड बलूकी के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस वक्त 57,765 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड हुई और हेड बलूकी के मुकाम पर पानी का अखराज 30,065 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि रेस्क्यू टीमें कश्तियाँ और दीगर सामान के साथ वहाँ पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं। नारोवाल, जफरवाल और करतारपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ हवाएं चलने से गैपको के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ देहातों में बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां पर मीडिया के तवज्जो दिलाने पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। शहर भर से चौक चौराहों और शाहराहों पर लगे बिल बोर्ड्स हटा दिए गए। गैर मंसूर शुदा डिज़ाइन के साथ ये गैर कानूनी बिल बोर्ड्स कमज़ोर और नाक़िस मटेरियल से तैयार करदा थे। बारिश, आंधी या तूफ़ान आने की सूरत में इनके गिरने से जानी और माली नुकसान का अंदेशा था। इंतजामिया की मंजूरी के बगैर नस्ब इन बोर्ड से किराए की मद में लाखों रुपए कमाए जा रहे थे और टैक्स अदा न करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। डीसी के हुक्म पर बल्दिया टोबा टेक सिंह ने तमाम बिल बोर्ड्स उतार कर कब्जे में ले लिए हैं। फैसलाबाद में 3 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी 3 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद जो है फैसलाबाद के दीगर इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिसमें खुसूसन बिलखुसूस जो जड़ा वाला रोड भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है। वासा की नाअहली की वजह से रोड पर जो है वो पानी जमा है। दुकानदारों के कारोबार पर भी बुरे असरात हैं। लोगों को आने जाने में भी बहुत सी परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे कि उनको ये पानी की वजह से किन किन मुश्किलात का जो सामना है। जी भाई बताइएगा, जी रोड पर पानी खड़ा है तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है सब कुछ। वासा की बिल्कुल नाअहली है और हमारे कारोबार पर बिल्कुल असरात पड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हुए हैं। पानी तो है, कस्टमर तो दुकान में नहीं आ रहा पानी की वजह से। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि यह हमारे पानी को जल्द से जल्द ख़त्म करवाया जाए। वासा को नाअहली को और वासा की नाअहली को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना था कि वासा को इसके बारे में तनकीद की जाए कि पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि जो कारोबार भी चल सके और शहरियों को आने जाने में भी आसानी हो सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ़ाबाद कबाड़ा यूनियन की जानिब से जाली डीसी और पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब हैदराबाद पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद अहवाल जान लेंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में।
लतीफाबाद कबाड़ा मार्केट के यूनियन के सदर रईस भोलू और दीगर अहदेदारान समेत दुकानदारों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने कबाड़ियों से जालसाजी और भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब हैदराबाद में जाली डीसी और पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बी सेक्शन थाने पर SHO ताहिर मुगल साहब जब से आए थे, ये सारा सिलसिला उनके दौर से चल रहा है। ये जो कोहिसार थाने का नवीद पुलिस वाला और उसका भाई शहजाद जो अपने आप को DC कहता है, वो सामान भर के दुकान से ले जा रहा है। तकरीबन पूरा दुकान का सामान उसने भर लिया। कबाड़ियों का कहना था कि पुलिस का दुकानों से सामान उठाना रोज का मामूल बन गया है। SP हेडक्वार्टर शाहनवाज मेमन ने मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे दुकानदारों के खिलाफ ही झूठी FIR दर्ज कर दी है। और SP ये शाहिद मेमन साहब जो हैं, इन्होंने फ़ोन किया वहाँ से और बोला वहाँ जाओ SP ऑफिस। हम वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारी बात सुनने के बजाय हमें वहाँ पर बेइज्जत किया और हमसे कहा कि मीडिया पे आके इनसे माफ़ी मांगो। अब ये ताजिर बिरादरी बेचारे ठेला भी चला रहे हैं, दुकानें भी चला रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएं? इन लोगों को देते रहे। भारी रकम पे तकरीबन 10 से 12 कबाड़ियों को इन्होंने लूटा और उनसे पैसे लिए। मुजाहिरीन का कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद समेत दीगर आला हुकाम से फौरी तौर पर जालसाज और भत्ताखोर जाली TC और पुलिस की जानिब से मुल्जमान की पशपनाही करने पर SP हेडक्वार्टर शाहनवाज मेमन को बरतरफ और कोसार थाने की पुलिस के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया। कैमरा मैन नजर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पाकपतन में दौरान उर्स और मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं DPO पाकपतन के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी बिल्कुल, उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से मैं इस वक्त DPO पाकपतन तारक वलायत साहब के साथ मौजूद हूँ। इन्हीं से जानते हैं कि हमें मुहर्रम उल हराम और उर्स के हवाले से सिक्योरिटी के बारे में हमें क्या बताएंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि उर्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह गंज शकर की रसूमात का आगाज़ हो चुका है और पुलिस इन रसूमात की और जो उर्स मुबारक की बाकी तकरीबात हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुकम्मल 24/7 सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। हमारे 3000 के करीब पुलिस एहलकार इसकी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। इस वक्त 224 CCTV कैमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए गए हैं। 87 मकामात पर आनी गेट लगाए गए हैं ताकि किसी किस्म की भी भगदड़ से बचा जा सके और उसके अलावा तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया पर ग्राउटिंग की गई है ताकि जो बहश्ती से गुजरने वाले ज़ायरीन हैं उनकी लाइन को मेंटेन रखा जा सके और एक इंतहाई डिसिप्लिन तरीके से उनको बहश्ती से गुजार कर निकाला जाए। इसके अलावा जो हमारी मुहर्रम की तकरीबात चल रही हैं, मुहर्रम की आमद है, मुहर्रम शुरू हो चुका है, उसके भी सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और दोनों तहसीलों आरिफ वाला और पाकपतन में तकरीबन 800 के करीब पुलिस एहलकार मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है उर्स और मुहर्रम अहराम के हवाले से सिक्योरिटी के खातर का इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी रुक करेंगे कश्मीर का, जहां मुहर्रम उल हराम के आते ही जगह जगह स्टॉल्स सज गए हैं। अज़ादार अक़ीदत से अलम की खरीदारी करने और कश्मीर के बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा मज़ारी इस रिपोर्ट में। शहरों की तरह कश्मीर में भी मुहर्रम उल हराम करीब आते ही मातमी भीड़ सजा दी गई है। लफ्ज़ जब वफा का जिक्र हो तो काजी अब्बास अलमदार के नाम ज़हन में आ जाता है। आम दिनों 50%, मुहर्रम के दिनों में 100%। बहुत रश होता है इधर। इसमें कोई अच्छी या हल्की की बात नहीं होती। जिसके ऊपर अहले बैत के नाम लिखे गए हैं वो हमारे लिए पाकीज़ा चीज़ है। कोई गरीब आता है, वो कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं 500 वाली चीज़ के 200 दूंगा, 300 दूंगा, तो हम उसको भी कहते हैं यार ले जाओ। ज़्यादा मुनाफे का सोचा नहीं है, लोग हदियतन दे जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने ज़िले में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुहर्रम उल हराम जुलूसों के रूट्स पर इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया और ब्रीफिंग ली।
जुलूसों के मुंतज़मीन से भी मुलाकात करके उनसे इंतज़ामात के हवाले से इस्तफसार किया, जिस पर मुंतज़मीन ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जुलूसों के रूट पर सफाई सुथराई और लाइट्स की हिदायत की। DPO सैयद करार हुसैन का कहना था कि मुहर्रम के दौरान ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए। खबर दें आपको, सादकाबाद थाना भोंग पुलिस ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू 5 मुखबी छोड़कर फरार हो गए। सादकाबाद थाने भोंग पुलिस के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई 5 मुखबी बहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डाकू मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग के तबादले में डाकू मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान ने चंद रोज कबल बाग में काम करने वाले 4 मजदूरों जबकि एक लड़के को खेतों में काम के दौरान अगवा कर लिया था। पुलिस की भारी नफरी फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। खानेवाल में कार सवार मुसल्लह नामालूम डाकू घर में दाखिल होकर मासूम बच्चों को यरगमाल बनाकर 50 लाख रुपए मालियत के जेवरात और लाखों रुपए नकदी लूट कर बासानी फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वारदात में मुलव्विस कार सवार मुलजिमान के आने की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में कार सवार डाकुओं को आते देखा जा सकता है। ताहम वर्षा ने DPO खानेवाल से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी करके माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि समुद्री में हेलमेट की अहमियत को उजागर करने के लिए शहरी ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा रोड पर हेलमेट पहने शहरियों में कैश इनामात तकसीम किए। तफसीलात देखेंगे ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी में हेलमेट की अहमियत को उजागर करने के लिए समंदरी के रहायशी राना सजावल का अनोखा अंदाज। शहरी ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा रोड पर हेलमेट पहनने शहरियों को रोककर कैश इनामात तकसीम किए। राना सजावल का कहना था कि अल्लाह पाक की तरफ से जिंदगी अनमोल तोहफा है और मोटरसाइकिल गैर महफूज सवारी है। हेलमेट पहनने से आपकी कीमती जान महफूज रहती है। मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक ऑफिसर राना एहसान मुस्तफ़ा का कहना था कि सड़क पे ड्राइविंग के कवानीन को जो शहरी फॉलो नहीं करते फिर हादसात उनका मुकद्दर बन जाया करते हैं। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद उनका कहना था कि राना सजावल का हेलमेट पहनने वालों की हौसला अफजाई काबिल तहसीन अमल है। कैमरामैन इमदाद कसूरी के साथ ताहिर चौराही, मेट्रो वन न्यूज़, समंदरी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि चंद रोज़ कबल नहर अपर जनाब में कंबरवाला के मकाम पर डूबने वाले दोनों कज़न्स की लाशें मिल गई हैं। 18 साला फहद की लाश को हेड बम्बावाला के मकाम से, जबकि 15 साला राहत की लाश लड़की पुल के मकाम से निकालकर रेस्क्यूअर्स ने लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया। दोनों का ताल्लुक कमरावाला गांव से था और नहाने की गर्ज से नहर पर आए और डूब गए। और यहाँ आपको बताएं कि खानका डोगरा म्यूनसिपल कमेटी के 2 सीनियर एहलकारों मलिक मोहम्मद असगर और नज़ीर अहमद के रिटायरमेंट के एजाज़ में चीफ ऑफिसर राना असलम की तरफ से शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में CEO और राना असलम, मोहम्मद तैयब शाकिर, सब इंजीनियर मोहम्मद उस्मान, अकाउंटेंट शोएब शाह, राना मोहम्मद असगर समेत बल्दिया मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिटायरमेंट लेने वालों की खिदमात को शानदार अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के आखिर में महकमे के साथियों ने रिटायरमेंट लेने वालों को गुलदस्ते पेश किए, उन्हें हार पहनाए और तहाइफ भी पेश किए। तांदियावाला में मदरसे जाते हुए अगवा होने वाली 6 साला बच्ची 8 घंटे बाद बाजियाब करवा ली गई। SP सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिम किसी दूसरे गांव का रिहायशी है और मेहमान बनकर रह रहा था। मुलजिम ने वरगलाकर बच्ची को साइकिल पर सवार करके अगवा किया। SP सदर डिवीज़न शमसुल हक दुरानी ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रेस हो जाते हैं और सदर ग्रामीण कमेटी और सदर अंजुमन ताजरान हाजी मकसूद अहमद भट्ट ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों का इंतज़ाम हम अंजुमन ताजरान शहर में नफ्स करवा देते हैं।
मीरपुर खास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिफ रजा चांडियों की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। मुनक़िदा इजलास से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा चांडियों ने कहा कि मानसून बारिशों के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों के सरबराहान कंटीजेंसी प्लान बनाएं और जल्द रिपोर्ट पेश की जाए और हिदायत की जाए कि मानसून की तेज़ बारिशों में नालों की सफाई सुथराई, पानी के निकासी, पीने के पानी की फराहमी और दीगर मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 प्रेमचंद, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जुनैद मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गुलाम रजा खोसो, महकमा ज़राअत लाइफ स्टॉक, पब्लिक हेल्थ, महकमा आपाशी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चिनियोट में इंसानियत सोस वाक़या पेश आया है। बासर जमींदार ने साथियों के हमरा नदीम नामी नौजवान के सर के बाल, भवें, मूछें और दाढ़ी को मूंड डाला है। मुल्ज़िमान ने तवे की कालक नौजवान के चेहरे और सर पर मल कर उसे बाजार में बरहना करके घुमाते रहे और वीडियो भी बनाते रहे। मुल्ज़िमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। इस वाक़े पर DPO चिनियोट अब्दुल्ला अहमद ने नोटिस लेते हुए 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना मोहम्मद वाला में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मरकज़ी मुल्ज़िम नसीम उर्फ शमी शाह को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े पर DPO चिनियोट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि किसी शख्स को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि Metro One न्यूज़ की खबर पर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने नोटिस लेकर टाउन का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ टाउन खादिम अली शाह, शाजिल शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने शहरियों से मुलाकात की, जिस पर शहरियों ने बुखारी टाउन में निकासी के मसाइल पर शिकायत की, जिस पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने फौरी तौर पर बुखारी टाउन में शाहरा पर फौरी नाला डालने के अहकाम दिए। अहकाम के फौरी बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंजीनियर की जानिब से बुखारी टाउन में पैमाइश का काम का आगाज़ हो गया। और अब आपको बताते हैं कि शोरकोट कैंट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से 3 फेज़ बिजली की तार चोरी कर लिए गए हैं। चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर तकरीबन 4 लाख के कीमती तार ले उड़ा है। एक माह में सरकारी स्कूल में तार चोरी की 3री वारदात है, जो पुलिस और स्कूल इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। बिजली के तार चोरी होने से स्कूल बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक सप्लाई मुअत्तल हो गई। CCTV कैमरे बंद पड़े हैं, जो मज़ीद वारदात का बाइस बन सकते हैं। खबर दें आपको डस्का से, जहां पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर से 30,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल होते हैं और असलहे के जोर पर वहां मौजूद अफराद को यरगमाल बनाते हैं और लूट कर बासानी फरार हो जाते हैं। थाना सिटी पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि उबाड़ू के करीब मोटरवे M5 के मकाम पर पिकअप और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पिकअप में सवार 2 सगे भाई जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सका। दोनों रास्ते में ही दम तोड़ गए। जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त सक्कर के रिहायशी सौराब और जावेद डोंकी के तौर पर की गई। और आपको बताएं कि 3 माह कबल कत्ल होने वाले बेटे और बहू के वालदैन इंसाफ के लिए दरबदर होकर रह गए हैं। मकवाल पुलिस बूढ़े वालदैन को इंसाफ दिलाने में नाकाम हो चुकी है। मलिकवाल के मोहल्ला इस्लाम नगर के रिहायशी शेर मोहम्मद और उसके अहल खाना ने मीडिया को बताया कि 1 अप्रैल की रात नामालूम मुल्ज़िमान ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर बेटे ज़फ़र इकबाल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि मज़ाहमत पर बहू सादिया बीबी पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मों किताब न लाते हुए दम तोड़ गई। शेर मोहम्मद के मुताबिक पुलिस ने कत्ल इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तकदो नहीं कर रही। टंडो मोहम्मद खान में बीवी को मनाने के लिए जाने वाला शख्स लापता हो गया। टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी के रिहायशी सज्जाद खास खेली, अब्दुल सलाम खास खेली, मीर खान खास खेली और दीगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 8 जुलाई को मेरा भाई जावेद खास खेली अपनी बीवी
اور بچوں کو لینے کے لیے اپنے سسرال گیا پر واپس نہیں آیا۔ 2 روز بعد جب ہمارے گھر کورٹ نوٹس پہنچا تو ہم نے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ جب اپنے بھائی کی تلاش میں اس کے سسرال پہنچے تو سسرال والوں نے ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ سسرال والوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کوٹری سائٹ پولیس نے مل لیبر افسر پر حملہ کرنے والے 2 ملزمان سمیت گرفتار کر لیے۔ کچھ دن قبل گھاٹ کی مل کے پروڈکشن انچارج حفیظ آرائی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے 2 ملزمان کو حملے میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان ضمیر چوہان، امجد رین۔ دوران تحقیقات ملزمان نے بتایا کہ پروڈکشن انچارج حفیظ آرائی سے ایڈوانس سیلری مانگی تھی، نہ دینے پر غصے میں آ کر ایسا قدم اٹھایا تھا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، پسٹل اور ایک 125 موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹری پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پریس کلب کہروڑ پکا میں تحفظ ختم نبوت سیمینار منعقد ہوا جس کی زیر صدارت صدر عاشق حسین قریشی نے کی ہے۔ سیمینار میں جنرل سیکرٹری عتیق الرحمان غوری، وائس چیئرمین پریس کلب کیسر علی رانا، سینئر نائب صدر اعظم علی قریشی اور دیگر پریس کلب کے عہدیداران ممبران نے شرکت کی۔ مذہبی اسکالر حضرت مولانا علی مجید اور حضرت مولانا مفتی محمد بن عبد الرحمان نے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آخر میں قوم و ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئیں۔ ایس ایس پی جیکب آباد سمیر نور چنا نے امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ضلع بھر میں محرم الحرام کے 10 دنوں میں 163 جلوس اور 206 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ جیکب آباد حساس ضلع ہے اور اس کے سرحدی ضلع کا بلوچستان کے ساتھ 126 کلومیٹر طویل بارڈر ہے۔ سرحدی علاقوں سمیت شہر میں بھی سیکیورٹی سخت کی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہوں یا مسافر گاڑیاں، سب کے قواعد چیک کیے جاتے ہیں۔ یوم عاشور پر شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جاتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں متبادل راستے بنائے جاتے ہیں۔ وہاڑی میں تھیلیسیمیا کا آگاہی پروگرام بیت المال پاکستان کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی بالکل، اس وقت میں وہاڑی میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج تھیلیسیمیا کے حوالے سے یہاں پہ آج پروگرام کیا گیا ہے بیت المال کی طرف سے۔ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم ڈوگر صاحب جو بیت المال کے انچارج ہیں ڈسٹرکٹ کے، اور تھیلیسیمیا کی انچارج کرتر نین وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی اور عام عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی جو تھیلیسیمیا کے مرض کا شکار بچے ہیں ان کے بلڈ کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ان کو بلڈ ٹائملی مل سکے، اور جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ کیونکہ بہت کاسٹلی ہے، ٹریٹمنٹ میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، اور اسکریننگ میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ جو پی ٹی پی اس میں ایفرٹ کر رہا ہے اپنی، جب ہم 100% اسکریننگ کریں گے تو 100% ہم تھیلیسیمیا میں پاکستان میں ملیں گے۔ جی ان کے ساتھ عاصم ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں جو بیت المال کے انچارج ہیں۔ ان سے جانتے ہیں صاحب یہ پہلے بتائیے گا اس سے پہلے بھی پروگرام کیا ہے یا پہلا پروگرام ہے اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سے پہلے پروگرام کر چکے ہیں، ہم نے تھیلیسیمیا سینٹر بہاڑی میں کھلایا ہوا ہے، اس میں ہم مریضوں کی پہلے بھی مدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تمام جو اپنے مریض ہیں ان کو چیک وغیرہ جاری کرتے ہیں 6 ماہ کے لیے۔ یہ آگاہی پروگرام ہے، یہ ہمارے ایم ڈی پاکستان بیت المال عمر فدا پراچا صاحب نے شروع کیا۔ یہ 18 سے 22 تک پورے پاکستان میں مہم چلی۔ اس مہم میں ہم جو ہے نا آگاہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم مدد پہلے کر رہے ہیں۔ جی عاصم ڈوگر صاحب اور تھیلیسیمیا کی انچارج کرتل نین وہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے جتنے بھی مریض ہیں یہ والدین سے ہی بچوں کے آگے آتے ہیں، تو جن حوالے سے انہوں نے بتایا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آگاہی کی جائے، اور عاصم ڈوگر صاحب کا مزید یہ بھی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عمرکوٹ کی جانب سے 11ویں جماعت کے سینکڑوں طلباء سے پری انٹری ٹیسٹ لیا گیا۔ پری انٹری ٹیسٹ میں 1500 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، جس میں مہمان خاص انجینئر کنہیا موہن لال، ایڈیشنل ڈائریکٹر کالجز میرپور خاص
देवेंद्र शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गौस मोहम्मद पठान और दीगर ने शिरकत की। इंजीनियर कन्हैया लाल का ये कहना था कि गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट के प्रिंसिपल अब्दुल रऊफ सुमरो और इनकी जानिब से लिया जाने वाला टेस्ट एक अच्छा अमल है। इससे तलबा के इल्म में इजाफा होता है और साथ ही प्री एंट्री टेस्ट का इनेकाद एक काबिल तहसीन अमल है। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।